5 سال بعد بڑی خوشخبری، قومی ایئر لائن برطانیہ کی فضاؤں میں اڑان بھرنے کے لیے تیار۔ پی آئی اے آج سے برطانیہ کے لیے پروازوں کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہے۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ ہوگی۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف تقریب میں خصوصی شرکت کریں گے۔ 24 جون 2020 کو غلام سرور خان نے پائلٹ کی ڈگریوں سے متعلق قومی اسمبلی کے فورم پر بیان دیا تھا۔ 1 جولائی 2020 کو برطانیہ نے پی آئی اے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ پاک افغان تجارت سیکیورٹی خدشات کے باعث معطل، سینکڑوں گاڑیاں طورخم اور چمن پر پھنس گئیں۔ درآمدی اور برآمدی گاڑیوں کی لمبی قطاریں، تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ ایف بی آر کے مطابق طورخم پر 23 درآمدی گاڑیاں کلیئرنس کی منتظر ہیں۔ درآمد کنندگان نے تاحال کچھ ڈکلیریشن جمع نہیں کرائی۔ ان گاڑیوں میں کپڑا، پینٹ، مونگ پھلی اور دالوں جیسی خراب نہ ہونے والی اشیاء لدی ہوئی ہیں۔ گوڈز ڈکلیریشن جمع کرائے جانے کے فوراً بعد کسٹم حکام کلیئرنس مکمل کر لیں گے۔ اس وقت 495 گاڑیاں طورخم اور چمن سرحد پر پار کی منتظر ہیں۔ برآمدی سامان والی 255 گاڑیاں طورخم ٹرمینل کے اندر کھڑی ہیں۔ 200 گاڑیاں جمرود لنڈی کوتر روڈ پر پھنسی ہوئی ہیں۔ غلام سرور خان، خلاچی اور انگورا اڈا بارڈر اسٹیشن پر کوئی درآمدی کلیئرنس کی منتظر نہیں۔ چمن میں 5 درآمدی اور 23 برآمدی گاڑیاں پروسیسنگ کی منتظر ہیں، جن کے مالکان نے اپنی کھیپیں واپس لے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ افغان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی۔ تجارت سے زیادہ اہم ایک عام پاکستانی کی جان بچانا ہے۔ افغانستان دوحہ مذاکرات میں کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ کہا، افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات آج ہوں گے۔ دوحہ مذاکرات میں ایک دستاویز پر اتفاق رائے اور دستخط ہوئے۔ افغان طالبان حکومت اگر اس معاہدے کو کہتی ہے یا نہیں کہتی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دریائے کنٹر سے متعلق عالمی قوانین کی پاسداری کریں۔ بھارت اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے کہا کہ بھارت کا افغانستان میں سفارتخانہ کھولنا 2 ممالک کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہم اندرونی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتے۔ بھارت کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ غزہ کے لیے امداد کی بلا تعطل ترسیل یقینی بنائے جائے۔ پاکستان مغربی کنارے کے انضمام کے اسرائیلی منصوبے کی مذمت کرتا ہے۔ تحریک لبیک قلعدم جماعت قرار، وزارت داخلہ نے پابندی لگا دی۔ فرسٹ شیڈول کی فہرست میں شامل۔ وزارت داخلہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ٹی ایل پی کو قلعدم قرار دے دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت سمجھتی ہے ٹی ایل پی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ حکومت کے پاس ٹھوس وجوہات موجود ہیں کہ ٹی ایل پی کے تانے بانے دہشت گردی سے ملتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن ٹی ایل پی اور تمام متعلقہ اداروں کو بے-ارسال۔ وزارت داخلہ کے مطابق انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پابندی کے لیے سپریم کورٹ سے فیصلہ درکار نہیں ہوتا۔ ٹی ایل پی پر پابندی انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لگائی گئی، نہ کہ آرٹیکل 17 کے تحت۔ وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، ٹی ایل پی پر پابندی کے لیے کافی مواد موجود تھا۔ جو تنظیم ایسی کارروائی میں ملوث ہو تو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے 30 دن میں جماعت اپیل کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس جماعت نے یقین دہانی کرائی لیکن پورا نہ اتر سکی۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت قلعدم قرار دی گئی جماعت کیسے سیاست کرے گی؟ وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ کسی مسجد یا مدرسے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ پنجاب میں اسلحہ اور اسمگلنگ کلچر کے خاتمے کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ پنجاب میں ڈرون پولیسنگ، مربوط سیکیورٹی اور آرمز ریگولیشن کے نئے قوانین متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کی ازسر نو جانچ پڑتال اور سخت سکروٹنی ہوگی۔ غیر قانونی اسلحہ 15 دن کے اندر واپس کیا جائے گا۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ نجی سیکیورٹی گارڈز کو پنجاب پولیس کی ہیلپ لائن 15 سے منسلک کیا جائے گا۔ اسلحہ کلچر کی حوصلہ شکنی کے لیے سالانہ لائسنس فیس میں 100% اضافہ ہوگا۔ لاہور میں کرائم سین پر فوری رد عمل کے لیے ڈرون پولیسنگ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ پنجاب کے 14 داخلی اور خارجی راستوں پر جدید اسلحہ اسکینر نصب کیے جائیں گے۔ اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں میں سختی لائی جائے گی۔ جرم کی سزا 14 سال قید مقرر کی۔ قوم کو پیغام ہے، پالیسی صرف بانی پی ٹی آئی کی چلے گی۔ بند کمروں میں کیے گئے فیصلے کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے۔
वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का चारसदा में जलसे से खिताब, कहा जिस दिन से बानी ने मुझे नामजद किया तो कहा गया कबूल नहीं, मुझे इन लोगों की फिक्र नहीं, अवाम को मैं कबूल हूँ। तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। मुझे दहशतगर्द बनाने की कोशिश की, कहा गया मेरे पास कोई तजर्बा नहीं। बानी PTI से मुलाकात के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाए, मेरे लीडर से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हम मुल्क में हकीकी जमहूरियत नाफिज करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस की ऑपरेशन इस्तेदाद कार बढ़ाने का भी वादा पूरा कर दिया। पुलिस के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी, 4 APC, 39 सिंगल कैब, 34 डबल कैब पिकअप, 2 यूरो, 5 पिकअप और 7 दीगर गाड़ियाँ शामिल। कहा सूबे में अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत अपनी पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। सुहेल आफरीदी नई शुरुआत के लिए नहीं, किसी के इश्क में खुदकुशी करने आए हैं। राना सलाउल्लाह कहते हैं सुहेल आफरीदी को दिखाना जरूरी था कि हवा में नहीं उड़ते, पाँव ज़मीन पर रखते हैं। सुहेल आफरीदी ने जो पहली तकरीर की उसमें कहा कि इश्क के लीडर में मारा जाऊंगा। नवाज शरीफ समेत हम सब ने कभी उनको जेल की तकलीफ देने की बात नहीं की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की पीर को बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर साहब इमरान खान को मिल लेंगे तो कौन सी क़यामत, क्या वो बाहर आके कौन सा ऐसा बम चलाएंगे कि जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट उड़ जाएगी या ये गवर्नरशिप हमसे छीनी जाएगी, या क्या हो जाएगा कि जिसका हमें डर है कि कल पता नहीं जैसे ही सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हुई बानी PTI से तो बस हम तो सारे फिर फारिग हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी से मुलाकात की हिमायत कर दी। प्रोग्राम सवाल से आगे में बात करते हुए कहा वज़ीर आला बानी PTI को मिल लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से हल करना चाहिए। मामलात सियासी लोग हैंडल कर रहे हैं लेकिन गैर जमहूरी जहन से। खैबर पख्तूनख्वा को हकूक़ लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, उनसे ताल्लुकात अच्छे करें, सियासी इख्तलाफात रखें, लेकिन सूबे के अवाम के हकूक़ आपकी जिम्मेदारी है। अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे को हकूक़ दिलवाने होंगे। PTI और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के सवाल पर उनका कहना था पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर सियासी जमात के लिए हर वक्त खुले हैं। बातचीत से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील का मामला मजीद लटक गया। सूबे का इंतजाम चलाना मुश्किल, काबीना का बाकायदा ऐलान न होने के बाद हुकूमती अमूर ठप पड़े हैं। सियासी कमेटी ने सुहेल आफरीदी को अपनी सिफारिशात भेज दी हैं। सिफारिशात के मुताबिक जब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं होती मुख्तसर काबीना के साथ काम चलाया जाएगा। बानी से मुलाकात के बाद काबीना में रद्दोबदल किया जा सकता है। सराय के मुताबिक बानी PTI ने किसी भी एडवाइजरी काउंसिल के बगैर सूबा चलाने के लिए फ्री हैंड दिया और सुहेल आफरीदी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सुहेल आफरीदी ने काबीना का हतमी फैसला बानी की मुशावरत से मशरूत किया था। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मौशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब, कहा गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची की बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल हैं। हम ट्रांस अफगान रेलवे, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। बड़े मंसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तमनाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत की मुलाकात, शहबाज शरीफ का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बासर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत दी। जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पंजाब में 70% जराइम कम हो चुके हैं। पंजाब से शूटर माफिया और गैंग माफिया के साथ डाला कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। सूबे भर में मुतहरिक गैंग्स की गिरफ्तारी अमल में लाई। डेडलाइन के अंदर गैर कानूनी असलहा रखने वाले खुद असलहा जमा करवा दें। डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। मरियम नवाज ने ओहदा संभालते ही महकमा पुलिस पर खुसूसी तवज्जो दी। वज़ीर आला सिर्फ बॉर्डर चेक पोस्टों के लिए 1.5 अरब रुपये का तरक्याती बजट दिया है। एडिशनल IGCCD सुहेल जफर जट्टा ने कहा कि CCD पंजाब पुलिस का हिस्सा है। CCD सूबे भर में जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रही है। पंजाब में कत्ल के जराइम की शरह 49% कम हुई। SP अदील अकबर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें एक गोली सर के सामने लगी और अकब से निकल गई। गोली की वजह से अदील अकबर का दिमाग शदीद मुतासिर हुआ। उनकी मौत भी दिमाग मुतासिर होने की वजह से हुई।
हुकाम के मुताबिक अदील अकबर की बॉडी से दीगर नमूने फॉरेंसिक लैब लाहौर भिजवाए गए। एसपी अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। दोनों एहलकारों को अलग अलग कमरों में रखकर बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। FIR ताहाल दर्ज नहीं हो सकी। 3 रुकनी कमेटी वाक़ये की तहकीकात कर रही है। DG सेफ सिटी कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। SP अदील अकबर ने डॉक्टर से मुआयने के दौरान भी कहा था कि उनका दिल कर रहा है कि वो खुदकुशी कर लें। FIA में तैनात SP हसन जहांगीर वट्टू का कहना है अदील अकबर 43वें कॉमन में उनके बैचमेट थे। इस दौरान उन्होंने उन्हें बड़ा हंसमुख पाया। उनकी अदील अकबर से आखिरी मुलाकात 2 दिन पहले हुई थी, जिसमें 3-4 घंटे तक गपशप और हंसी मजाक होता रहा। खुदकुशी करने वाले ASP अदील अकबर का आबाई इलाका कमोकी में सुपुर्द खाक। कराची SIU पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हलाकत, पोस्टमार्टम 36 घंटे बाद किया गया। पोस्टमार्टम में नौजवान इरफान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। मजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम मुकम्मल। सारे चेहरे और कमर पर तशद्दुद किया गया। जिस्म के नाजुक हिस्से पर भी तशद्दुद के आसार। मौत की हतमी वजह केमिकल रिपोर्ट से मालूम हो गई। पुलिस ने मेडिको लीगल सेक्शन में जमा कराए गए कागजात में मुतवफ़ी की उम्र 30 साल दर्ज की है। ताम लवाकिन ने मीडिया को बताया कि वो सिर्फ 16 साल का था। एडिशनल IG का दावा है कि गिरफ्तारी के फौरन बाद इस शख्स को बज़ाहिर दिल का दौरा पड़ा, जिससे वो जाँ बहक हो गया। 7 पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया। मकतूल इरफान के वरसा का लाश रखकर एहतजाज। सोराब गोत ED सेंटर से शफीक मोड़ जाने वाली शाहराह बंद। वरसा का इरफान के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची एयरपोर्ट पर बड़ा फ्रॉड। शहरी को हब से बेजा में रखकर डिजिटल वॉलेट से 8.5 लाख अमरीकी डॉलर लूट लिए गए। मुतासरा शहरी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पुलिस हुकाम को खत। शहरी का कहना है कि एयरपोर्ट पुलिस की जानिब से मुकदमे के अंदराज से इनकार पर अदालत से रुजू किया। नामजद मुल्जिमान ने राब्ता करके CCTV फुटेज को गायब करने की धमकियां दी हैं। मखसूस कैमरों की फुटेज डिलीट या ओवरराइट की गई है। एयरपोर्ट के CCTV कैमरों का सिस्टम फुटेज 24 से 28 दिनों तक महफूज रखता है। ताखीर से CCTV के मुस्तकिल डिलीट होने का खदशा है। असल कैमरों की रिकॉर्डिंग को महफूज किया जाए। अदालती हुक्म पर SSP वलीद ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया। DSP रैंक के ऑफिसर तहकीकाती अफसर मुकर्रर। दिसंबर में आज़ाद जम्मू कश्मीर में नए इंतखाबात कराने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। आला सतह की पार्लिमानी कमेटी में नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत शामिल। कमेटी फैसला करेगी तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या असम्बली तोड़ी जाए। सियासी क़यादत की अक्सरियत असम्बली तहरीर करके नए इंतखाबात की हामी है। असम्बली की मुद्दत जनवरी 2026 से दिसंबर 2030 तक रखने का इम्कान। 5 साल इंतखाबी शेड्यूल को बाकायदा बनाने की तजवीज़ से रिकॉर्ड। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम के बायस सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। महंगाई पर काबू पाने के लिए हंगामी इक़दामात का फैसला। खुर्दनी तेल और घी के शोबे में उजारादारी की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर ख़जाना के अवाम की क़ुव्वत ख़रीद के तहफ़्फ़ुज़, मार्केट के इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। चीफ इकोनॉमिस्ट की महंगाई के रुझानात पर तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया। हालिया सैलाब से ज़रई अराज़ी और मवेशी मुतासर हुए। सैलाबी सूरत हाल से ग़िज़ाई अफरात ज़र में इजाफा हुआ। अक्टूबर के दौरान महंगाई में मज़ीद इजाफा नोट किया गया। इसी इजलास में सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी के खात्मे समेत कई मनसूबों के लिए ग्रांट्स मंजूर। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन का महंगाई पर एहतजाज। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी की ऐवान में टमाटर लहराकर हुकूमत पर तनकीद। कहा 75 रुपए का एक टमाटर हो चुका। गुड्स गवर्नेंस का नारा लगाने से गुड गवर्नेंस नहीं होती, आपको फील्ड में जाना होगा। पंजाब में सेहत की सहूलियात सवाल का शिकार हैं। अपोजिशन की कोरम की निशानदही। हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। इजलास 27 अक्टूबर तक मुलतवी। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, PCB के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशन मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB ने जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमों के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया। तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत।